I'm at F3 Kavita's Yabex. Well, in this video, I'm going to show you how you can have great abs without going to the gym or using any equipment or without doing crunches on mat. I can show you you can work out anytime, anywhere, whether at work, whether traveling or you're at home. Maybe even if you're cooking, you can have great abs by few simple exercises. So here we start how you can make great abs in just 5 minutes. Alright, exercise number 1. You don't have to bend, but you have to crunch. You can do without movement also. Make sure I'm not bending, I'm crunching. You can start with 20. Breathe out when you crunch. And breathe out forcefully. And for the sides, you can do alternative. Again, I'm not bending on the side. I'm not bending like this. I'm coming in the middle. Next exercise is again very simple. Crunch and back. Crunch and back. If you can do like this, it's okay. If you can't do like this, you can do with the support. And steady. Crunch and steady. Crunch and steady. And the next exercise are very simple again. What you can do is for the sides. Again, make sure you don't have to bend, but you have to crunch. You can keep your knees a little bent. You don't have to keep it straight. So these are few simple exercises which will help you to have great abs anytime, anywhere. How you can remove these side fats, especially what you call the tires, right, and have great shape. So we'll be doing 3 very simple exercises over here. Once we do this exercise, you will see a great difference in your side curves. So we'll start with exercise number 1. Just you have to bend on the sides. You can do this exercise with keeping your feet together or a little apart. Breathe out when you bend. And don't bend ahead, go a little back. You can do it directly. Well, this was exercise number 1. Exercise number 2, especially for the thigh. If you can't do without support, you can take a support and do this exercise. This will give a pressure, especially at this push. Exercise number 3. It's similar to the exercise number 1, but earlier you were just bending, but at this time when you bend, you do backward, just take your feet up. आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि आपको छुटकारा दिलाएंगे अपने साइड के जो फैट, जिसे आप लव हैंडल्स बोलते हैं, उनसे। वेदर यू आर मैन और वुमेन, हर कोई परेशान रहता है कि अपने इस साइड के जो फैट जो जमा हो जाता है उससे कैसे छुटकारा पाएँ और ताकि आप अपने मनपसंद फेवरेट ड्रेसेस पहन सकें। तो मैं आपको बताऊँगी 3 सिंपल एक्सरसाइज, जिसके बाद आप अपने ऑल फेवरेट ड्रेस जो आपने अपने कबोर्ड में या लॉक करके रख दिए थे वो आप निकाल कर पहन सकते हैं। राइट, तो ये एक्सरसाइज आप कहीं पर भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हो या किचन में खाना बना रहे हो, आप कहीं पर भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं एंड हैव अ ग्रेट शेप। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये, जिसे हम कुछ साइड में पैर जब हम लिफ्ट करते हैं तो बहुत पैर लिफ्ट आसानी से पैर लिफ्ट करना है ऊपर, जिस तरफ हम पैर लिफ्ट अप करते हैं उसी तरफ हमको बेंड होना है। बट मेक श्योर अगर आपको इसको ज़्यादा इफेक्ट देना है तो आगे की तरफ बेंड ना हो, बट थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे रखें एंड देन अपने पैरों को लिफ्ट करें और इस हाथ को दूर से नहीं बल्कि यहाँ पर टच करके अपने पैरों को
जितना हो सके उतना आप नीचे जाएं। और जब आप बेंड होते हैं साइड में तो उस वक्त आपको ब्रीथ आउट करना है। एंड मेक श्योर डोंट बेंड अहेड, थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और पीछे की तरफ आपको झुकना है। ये आप कर सकते हैं अराउंड 12 to 15 शुरुआत में, और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यू कैन टेक इट अराउंड 20-25 और इसके 2 से 3 सेट आप कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज़ वेरी सिंपल। अब मैं आपको दिखाऊंगी एक्सरसाइज नंबर 2 विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू दिस एक्सरसाइज, लेकिन उसमें थोड़ा वेरिएशन ये होगा, जब हम पैर को लिफ्ट अप करेंगे तो हम पैर को थोड़ा बेंड कर लेंगे, और ये जब हम पैर को लिफ्ट अप करेंगे तो इस तरीके से साइड में पैर को लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपनी हील्स को टच करेंगे, उसी तरफ बेंड होगी। अगेन बॉडी लिटिल लीन बैकवर्ड, नॉट फॉरवर्ड, थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे रहना है हमें। और अगेन ब्रीद आउट करना है आपको जब आप साइड में बेंड होंगे तो। पैर को यहाँ पर ही मत आप लिफ्ट अप करें, बल्कि ऑन दिस साइड्स। जब हम साइड को पैर लिफ्ट अप करते हैं तो उसी वक्त हमको थोड़ा सा बेंड करना है। This is exercise number 2 and exercise number 3 is again very simple exercise। इसमें आपको क्या करना है, एक पैर को अपना आगे रखना है एंड एक पैर पीछे रख के, और जिस तरफ हम बेंड होंगे उसी तरफ, जैसे ये पैर मैंने आगे रखा है तो ये टू टेक दिस हैंड अपवर्ड्स एंड यू टू बेंड। अगेन कीप दिस हैंड क्लोजर टू योर बॉडी एंड ट्राई टू बेंड एज मच एज यू कैन। 3, 4, 5. This also you can do around 10 to 15 in the beginning. This leg is forward, then I'll just take this hand upward. So these were very 3 simple exercise. In fact, बहुत simple exercise जिसे आप कहीं भी कहाँ पर भी कर सकते हैं. How you can have great abs with a basic exercise. It's very important to do all this exercise in a perfect manner. Usually what people do, they start doing ab workout and mostly they do it very wrong. So it's very important first you do an expertise into this basic exercise, and then you can go for your actual ab workout. So here we start with the basics. First you have to practice all this exercise so that the rest of the exercise for your six pack or your abs you can do nicely. So first you need to do is just practice this. Just hold it. Just hold it. Then very slowly take it. Roll back and it should not be like this. Just your knees should be straight, right? It shouldn't be like this. It's straight, straight. Just hold it, hold it, hold it. And next you can practice is just roll up and just straight. Slowly, slowly take it down. Just hold. Then again down, and then again hold. Then down, and then just hold, and then roll back. What mostly people do is just take it up, and then when they take it down, just hold it, and when they can't control, they just immediately keep their feet down, which is very wrong. You shouldn't do like this. If you feel that if you can't control, just roll it back. Right? Up. Hold very nicely, control yourself, and then again hold, control, and then hold it, and take it back. You can also just practice this one. All these exercises are very important for your abs actually. And the third one is you can start slowly. Basic you can start up,
and slowly down. Up and slowly down. Make sure that your knees are straight. And once you are perfect with this, you can start without keeping your feet, actually touching your feet to the ground. You can just do up. But it's very important that when you do an ab workout, initially you should start very slowly. You should not do, say, about 10, 15, 20, not like this. Start with 5, then 7, then 8, then 10 like this. मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप किस तरीके से, जब आपको, अगर आप घर पे हैं और आपके पास मैट है और इतना टाइम है कि आप अपने ऐप वर्कआउट को घर पे कर सके मैट बिछा के, तो आपको पहले शुरुआत कैसे करनी है। फर्स्ट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अपने पैरों को किस तरीके से कंट्रोल मूवमेंट्स के लिए आपको तैयार करना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अब जब आप वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप किस अच्छे तरीके से आप अपने ऐप वर्कआउट कर सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इन दिस सेकेंड वीडियो। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब तो अगेन यू हैव टू बी ऑन द मैट। आपको एक मैट बिछाना है एंड उसके ऊपर देन यू हैव टू जस्ट लाई डाउन एंड आई विल शो यू 3 एक्सरसाइज फॉर अ गुड ऐप वर्कआउट। तो ऐप वर्कआउट आप जब भी करते हैं तो यू मेक श्योर दैट आप बहुत ही कंट्रोल, इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी होती, बहुत आराम से आपको इस एक्सरसाइज को करना होता है। Just be relaxed and जब आपके पास कंट्रोल मूवमेंट्स आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो slowly and gradually just checking your legs and then just straight आप पैर ऊपर करने के बाद में एक एक पैर को आपको बहुत ही आराम से and slowly आपको पैर को नीचे लेके जाना है and then again take it up. Ready? Drop your legs, breathe out. Very nicely and in a very controlled way. Breathe out and then up. This you can do around 8 to 10 initially and then you can increase it. This was exercise number 1. Exercise number 2 is again अपने पैर को थोड़ा सा आगे लेके जाएं और थोड़ा सा इसको और पैर को थोड़ा डिस्टेंस में रखें एंड देन अपने हाथों को इस तरह से लेके यू हैव टू, जिस तरह आप क्रंचेस करते हैं इस तरीके से आपको उठना है। अगेन वेरी स्लोली एंड नाइसली, बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है एक्सरसाइजेस में। ब्रीथ आउट व्हेन यू कम अप एंड देन डाउन, देन ब्रीथ आउट एंड कम अप। Around 8 to 10 in the beginning. Exercise number 3 again, your leg position will be same. और अब आपको साइड की तरफ उठना है, दोनों तरफ, ओके? और साइड की तरफ उठ के आपको अपने हील्स को टच करना है। सो हाथ को इस तरह से रखना है आपको and touch your heel and then go back and on the other side. Again, when you come up, breathe out. Again 8 to 10. Well, I would suggest, but अगर आप इसको बहुत धीरे से शुरुआत करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा. You can do this exercise around 4 to 5 in the beginning, then 8 to 10, and then slowly and gradually you can increase this exercise. And once again, don't be in a hurry. जब आप इन exercise को करें तो बहुत ही slow और control तरीके से करें. So these are 3 very excellent and very effective exercise for your. मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ 3 बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। आप रूटीन में अपना नॉर्मल ऐप वर्कआउट करते हैं या तो इंक्लाइन या रिक्लाइन पोजीशन में या फ्लोर पे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से बताने वाली हूँ जो कि बहुत इफेक्टिव है। मैं पूरा प्रोसीजर आपको यूट्यूब वीडियो से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जस्ट इन ग्लिम्स में आपको यहाँ बताने वाली हूँ 3 बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज। आप कैसे 6 पैक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बेडरूम में हूँ और मेरे पीछे यहाँ पर बेड है, और ये जो बेड है विच दिस इज नॉट वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ बेड। ये जो नॉर्मल एक बेड है, ना ही बहुत ये टाइट है इसका सरफेस, इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल बेड।
और यूजुअली हम घर पे ऐसे ही बेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। तो आप अपने बेड पर ही कैसे अपना एब वर्कआउट कर सकते हैं और अपने एब्स को अच्छी शेप दे सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली मेक सिक्स पैक अगर आप इसके ज़्यादा रिपीटेशंस करते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको 5 to 7 रिपीटेशंस बताऊंगी, लेकिन आप घर में जब आपको सिक्स पैक अगर बना रहे हैं और जो आप यूजुअली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सिक्स पैक कैसे बनाएं, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। सो यू ऑल कैन हैव ग्रेट abs, especially six pack. If you're looking out for, then you can include these 3 exercises in your ab routine. Alright? यहाँ मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको यहाँ पे बैठना है, बहुत पीछे की तरफ नहीं जाके बैठना है, बट यू हैव टू एक्चुअली आगे की तरफ बैठना है, जिससे कि आपके पैर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिले और पैर को आपको नीचे रखना। जो आप नॉर्मल जो आप क्रंचेस करते हैं वैसे आप क्रंचेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना हम डिक्लाइन पोजीशन में है ना हम इंक्लाइन पोजीशन में, हम एक्चुअली हम बैठे हैं जैसे हम चेयर पे बैठते हैं और पैरों को हमने ऊपर रखा है और बिल्कुल पैरों का सपोर्ट नहीं। यहाँ पे जितना भी प्रेशर आएगा वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके एब पर आने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्रंचेस करने हैं, यू शुड जस्ट गो डाउन एंड नॉर्मल क्रंचेस। ये आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं एटलीस्ट 20 से आप शुरुआत कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर 20, 30, 40 एंड यू कैन गो अप टू 50 एक्चुअली। आप चाहे तो इंटरवल्स में भी कर सकते हैं इसको। देन सेकंड एक्सरसाइज में आपको बताने वाली हूँ, इसमें पैर आपका थोड़ा सा पीछे है एंड अगेन आप इसमें आप चाहे तो आप पैर थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं, इसको पैर को यहाँ पे टक करके रख सकते हैं, या फिर आप पैरों को ऊपर की तरफ सिर्फ होल्ड करके टाइट करके रख सकते हैं। एंड ये वाली एक्सरसाइज में आपको ऊपर आना है, तो इफ यू वांट यू कैन थोड़ा सा पैर नीचे रख लें और पोजीशन आपकी यही रहेगी, ऐसे ही आपको बैठना है। एंड दिस टाइम आप जब क्रंचेस करें तो आपको थोड़ा सा और ऊपर अपने आप को उठाना है, राइट, और हाथों को आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है। सो अगेन इससे भी आप अराउंड 20 कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इसमें जितना भी प्रेशर आ रहा है वो सारे आपके एब्स पर ही आ रहा है। यहाँ पे कोई आपको सपोर्ट यहाँ पे आपको पैरों से नहीं मिल रहा, सारा प्रेशर आपको एब्स से मिल रहा है, सारा वर्कआउट एब्स मिल रहा है। और अब जो वर्कआउट देख रहे हैं वो आप बताऊंगी मैं आपको, वो आप एक्चुअली आप फ्लोर पे करते हैं यूजुअली, लेकिन यहाँ पर हम इस बेड पर करेंगे इसको। और यहाँ पे एडवांटेज आपको इस एक्सरसाइज में ये मिलता है बेड पे करने का, तो जब आप फ्लोर पे करते हैं तो आप सिर्फ फ्लोर से पैर को लिफ्ट अप करते हैं और अपने आप को लिफ्ट अप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक्चुअली डबल प्रेशर लगाते हैं, बिकॉज आप अपने आप को अपने पैरों को फ्लोर से लिफ्ट अप करते हैं और अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करते हैं। तो इट गिव्स मच मोर इफेक्ट फॉर योर एब वर्कआउट। सो ये भी आप शुरुआत में कर सकते हैं अराउंड 20। So all these are my very favorite exercise. So कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनकी कुछ repetitions करें and have great abs actually. So ये आप exercise usually हम नीचे से पैरों को उठाना है और ऊपर। This gives lot of good pressure on your lower abs. ऊपर उठते समय अपने पैरों को ऊपर लिफ्टना है, slowly. So these are exercises which I'm showing you now. जो अब तक आपने देखी वो बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके एब वर्कआउट के लिए, फॉर योर लोअर एब्स एंड फॉर योर अपर एब वर्कआउट। सो आई एम श्योर कि इन एक्सरसाइज को आपने डेली रूटीन में आप इंक्लूड करें। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने लव हैंडल से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी फेवरेट ड्रेसेस पहन सकते हैं। तो 3 सिंपल एक्सरसाइज दैट इट टेक्स नॉट मोर देन 1.5 to 2 minutes। और इसमें भी मैं आपको बताने वाली हूँ इन दिस वीडियो पार्ट 2 कि आप 3 और सिंपल एक्सरसाइज, चाहे आप एक्सरसाइज करें चाहे आप एक्सरसाइज करें, कैसे अपने लव हैंडल से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसमें भी अगेन दीज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइज व्हिच यू कैन डू एनी टाइम एंड एनीवेयर। इसे आप खाना बनाते बनाते भी कर सकते हैं, इसे आप अपने ऑफिस में कर सकते हैं, इसे आप ट्रैवलिंग जब कर रहे हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ product or you don't have to go to the gym. आप जहाँ भी हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। So I'm so excited because मैं इन एक्सरसाइज के बाद अपनी फेवरेट ड्रेस पहन सकती हूँ। So similarly even you can wear all your favorite dresses. So let's start with these 3 simple exercises. So exercise number 1. So ये एक्सरसाइज आप चाहे तो आप सपोर्ट के साथ कर सकते हैं और एज यू कैन डू विदाउट सपोर्ट। तो अगर आप विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं तो जस्ट अपने पैर को आगे लिफ्ट अप किया एंड साइड में लिफ्ट अप किया। जब आप साइड में लिफ्ट अप करते हैं अपने पैर को तो साइड में आपको इस तरफ बेंड हो जाना है, फ्रंट एंड साइड, फ्रंट एंड साइड। एंड इफ यू कांट डू डायरेक्टली तो आप ये कर सकते हैं, आप पैर के पीछे एंड डाउन, आप
यहाँ वापस रखा है एंड साइड। आप चाहें तो सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं, कहीं पर आपने हाथ लेकर सपोर्ट ले लिए एंड देन यू कैन स्टार्ट। व्हेन यू लिफ्ट अप योर लेग ऑन दिस साइड, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट बेंड अगेन। आपको आगे बेंड नहीं रहना, आपको थोड़ा पीछे की तरफ रहना है। This also you can do around say 10 to 12 in the beginning। और इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज है विच इज़ अगेन वेरी सिंपल। इससे भी आप चाहे विदाउट सपोर्ट करें या विद सपोर्ट करें। एंड इससे पहले एक्सरसाइज में हमने पैर स्ट्रेट किया एंड देन ऑन साइड, फ्रंट एंड साइड। साइड में करेंगे तो आपको साइड में थोड़ा सा बेंड होना है। व्हेन यू लिफ्ट अप योर राइट ऑन साइड वेज देन दिस बेंड अप एंड देन आप। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी। एक्सरसाइज नंबर 2 मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा साइड वेरिएशन है इसके अंदर। जब हमने ये एक्सरसाइज करी तो आपने फ्रंट एंड ऑन दिस साइड, बट इन दिस वन यू हैव टू गो विद क्रॉस। अपने पैरों को क्रॉस लेकर यहाँ से साइड, क्रॉस एंड देन साइड, क्रॉस एंड साइड। So again you can do around 12 to 15 in the beginning, cross and side. This also you can do with this upper. And exercise number 3 is also very simple. इससे आप चाहे अगर आप वॉल के आगे खड़े हैं या अगर आप ऐसे भी सिंपल खड़े हैं, तो what you have to do is bending both the sides. जब ऐसे बेंड करें तो अपने आप को यहाँ पे एक स्ट्रेच देना है और यहाँ पे एक स्ट्रेच आएगा आपको, क्योंकि हम ऊपर बेंड नहीं हो रहे, हो गया कोई डाउनवर्ड्स। You don't have to bend upwards, you have to bend downwards. Around 12, 15 or 20 as per your convenience, and then you can gradually आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 सिंपल बहुत एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप कहीं पर किसी भी वक्त कर सकते हैं और अपनी बॉडी को एक ग्रेट शेप दे सकते हैं। बिकॉज विद योर मेन और वुमेन वी ऑल सफर फ्रॉम स्पेशल दिस साइड फैट which you call the love handles। वेल दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बेडरूम में कैसे अपने लोअर एब्स को वर्कआउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने वर्कआउट किया एब्स के लिए, आप सिक्स पैक कैसे बना सकते हैं अपने बेडरूम में रह के, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसी बेडरूम में आप सिक्स पैक भी बना सकते हैं और इसी बेडरूम में आप अपने एब्स को बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं और अपने लोअर एब्स को, स्पेशली लेडीज आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लोअर एब्स की, राइट, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी ये लोअर एब्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड वेदर यू मैन और वुमेन, लोअर एब्स की प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। इफ योर लोअर एब्स आर रियली गुड देन आपके एब्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे। एंड अगेन वंस अगेन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये बेड आप देख रहे हैं कि कहीं भी आप बेड पे अगर वर्कआउट करते हैं तो बेड बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए या बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत टाइट है, ये एक नॉर्मल बेड है। और यहाँ पर बेडरूम में आज हम वर्कआउट करेंगे लोअर एब्स के लिए 3 मेरी फेवरेट बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगेन हमें यहाँ पर बैठना है और बहुत पीछे नहीं जाना है, इस तरह से नहीं बैठना है, बल्कि आपको यहाँ पर आगे की तरफ बैठना है। एंड यूजुअली ये वर्कआउट भी आप यूजुअली फ्लोर पे करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम बेड पे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में कहा था कि आप जब इस तरह से बेड का वर्कआउट करते हैं तो आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा मिलता है। जब हम फ्लोर पर वर्कआउट करते हैं तो आप फ्लोर से अपने पैर को लिफ्ट अप करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह बैठ के वर्कआउट करते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक हमें एक बहुत ही अच्छा अपने पैरों को मूवमेंट देने का एक मौका मिलता है। सो ये जो आप फ्लोर पे करते हैं एक्सरसाइज, यही आप यहाँ पर आपको बेड पे रहकर करनी है। अपने पैर को इस तरह से लिफ्ट करना है एंड नीचे से पैरों को ऊपर लिफ्ट करना है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप इसको सिर्फ पैर को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ पैर को अगर आप लिफ्ट करेंगे तो आपको पूरा प्रेशर आपके सिर्फ और सिर्फ लोअर एब्स में यहाँ पर आने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 2, ये इसमें भी आपको सिर्फ आगे की तरफ बैठना है और ये भी जो आप लेट कर फ्लोर पे करते हैं इस तरीके से अपने पैरों को दोनों तरफ लेकर जाना है, दोनों पैरों को, जिसे आप पूरा सर्कल घुमाते हैं इस तरीके से, सिर्फ हाफ सर्कल
आपको यहाँ पे लेना है। और इसमें भी फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ्लोर पर होते हैं तो फ्लोर से अपने पैरों को साइड में उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़मीन से अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर एक और ये एडवांटेज मिलता है। एंड अगेन आगे की तरफ बैठना है ताकि आपके लोअर एब्स को अच्छा सा वर्कआउट मिले। आप चाहे तो पूरा इस तरह से लेट के भी कर सकते हैं, और आप अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा करके भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रियली ट्रेन्ड तो अपने हाथों को सिर्फ यहाँ पर रखिए। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज नंबर 2 कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द लोअर एब्स।